बर्सा फैब्रिसिस से आएंगे और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो थाइमस ग्लैंड से हैं। तो हमारे तो बर्सा फैब्रिशियस है ही नहीं है। बर्ड्स का से वो बर्ड्स के थे तो उससे उन्होंने वर्ड लिया था। इन्वेंट हुआ था इसलिए। सभी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक, B lymphocytes are responsible for the production of antibodies. The chemicals are reagents that kill specifically to the foreign invaders. The right, ये हो गया. And what is the function of T cells? वो खुद फाइट करेंगे सर। हाँ. Fight. They basically they do not create, they do not synthesize or secrete antibodies. Rather, they are also called immune cells, but they fight with the specific type of the antigens. बिल्कुल सही है, ये हो गया. Do you know that there are maybe another type of the subpopulation of the T cells are there? कोई बता सकते हैं कौन सी है T cells की subpopulation? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर ने क्या क्वेश्चन पूछा? मेरा बेटा कहने का क्या, जिस तरह लिम्फोसाइट्स की दो सब पॉपुलेशन है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, क्या टी लिम्फोसाइट्स की भी आपस आगे जाके कोई सब पॉपुलेशन हो सकती है? सर नहीं पता। हाँ, कोई नहीं, कोई ऐसा बच्चा, शाहजेब कोई पता है, कहीं पढ़ा हो? सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल। हाँ, अच्छा, ये हम दोनों सेल मेडिएटेड बेटे, उस दो तरह की हम इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये सारी डिटेल प्रोबेबली आप इम्यूनोलॉजी का एक कोर्स है आपके, शायद इसी सेमेस्टर में है, ये शायद अगले सेमेस्टर में है, वो आप पढ़ेंगे इन डिटेल. हम सिर्फ आज आपको सेंसिटाइज करेंगे. So there are two types of acquired immunity. One is called as humoral immunity, and another is called as CMI, cell-mediated immunity. Humoral immunity is the immunity which is actually the production of the antibodies against the specific antigens. They are called as humoral immunity. And if not antibodies are taking part in the immunity, rather the cells which are called as T cells, they are taking part in the destroying of the specific type of the antigens, then this is called as cell mediated immunity. Means इसमें cell mediate कर रहे हैं, और humoral में means कोई ऐसा chemicals या ऐसे reagents हैं जो कि blood में होते हैं और वो act करते हैं, इसलिए उनको humoral immunity कहते हैं. चलिए हम बारी ऐसा करते हैं, ये नजर आ रही है आपको मेरी वो वाली लिम्फ स्लाइड्स? यस सर। चले, आप में से कौन बताएगा कि लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? स्टार्ट करें शुरू से. हीमोपोइसिस से स्टार्ट करें. सर प्लूरिपोटेंट सेल्स में. शाबाश. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लूरिपोटेंट सेल्स आर देयर, एंड देन क्या बनता है? ये देखिए ना, आप ही ने तो मुझे पढ़ाया सारा. माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल. नहीं नजर आया जो नई स्लाइड्स है आपको? जी. So basically the pluripotent stems, the major cells are, first are the multipotential cells are formed, which are the precursor for everyone. Then they are committed to various type of the cells. One type of the cells are called common myeloid progenitor committed cell, another are called common lymphoid progenitor cell, right? So the lymphocytes, they are basically formed from the common committed lymphoid progenitor cells. And there are two types of the subpopulation which has been produced under the stimulus. One is called as lymphocytes and other is called as natural killer cells. So the lymphocytes, they are again subpopulation. They are of two types of subpopulation. One is called T lymphocytes and other is called as B lymphocytes. So they are formed basically in this way. And you know where the hemopoiesis takes place during the embryonic stage? शाबाश. ये देखे ना, अभी हमने बिल्कुल आपने सही कहा. तो पहले हमारे योग
यॉर्क सैक से होती है, फिर उसके बाद हमारे कहाँ चले जाती है? लीवर में। सर लीवर में। लिवर, हाँ लिवर में Liver. और स्प्लीन में, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ बोन मैरो में स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, यही काम लिम्फोसाइट्स के साथ भी हो रहा है। सारे के सारे हेमेटोपोइसिस जो भी हो रही है, हीमोपोइसिस जो भी, वो सारी की सारी उसमें हो रही है। लेकिन हमने ये देखा कि उन सेल्स के करने के बाद ये वो सेल्स की पॉपुलेशन, लिम्फोसाइट्स की पॉपुलेशन आगे जाके दो मुख्तलिफ ऑर्गन के पास चले जाती है। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, ये एक डायग्राम अगर आपको नजर आ गई है जी, नजर? Yes, जी sir. सर। अच्छा, अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो प्लोरीपोटेंट Yes, वही sir. मल्टी पोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आ गए। वहां उसने क्या बनाना शुरू कर दिया? वही कमिटेड सेल। कमिटेड सेल दो तरह के हो गए, लिम्फाइड प्रोजिनेटर सेल्स, राइट। अब लिम्फाइड प्रोजिनेटर सेल्स क्या करते हैं? वो आगे सेल जो हैं वो मुख्तलिफ दो ऑर्गन्स को देते हैं, दैट इज आर कॉल्ड एज प्री। अच्छा, वो जो सेल्स जो वो पॉपुलेशन जो थाइमस को दे दें प्रोसेसिंग करने के लिए, हम उसको कह देते हैं कि ये टी सेल्स होंगे। बात समझ रहे हैं? और कुछ सब पॉपुलेशन जो होती है लिम्फाइड प्रोजिनेटर सेल्स की, वो कहाँ चले जाती है? वो चले जाती है फीटल लिवर में या बोन मैरो में। और ये चूंकि कि ये जो सेल्स, ये जो प्री प्रोसेस्ड सेल्स हैं, इनको हम कहेंगे प्री प्रोसेस्ड सेल्स which have a destination to go to either to the fetal liver or bone marrow, or there are some of the lymphoid progenitor cells that have a capacity or the ability or the destination or the program which can goes to the thymus. And those pre-processed cells, which lymphocytes which are going towards the thymus for the processing, for the maturation, they are called as T lymphocytes. And those lymphoid progenitor cells which are going to fetal liver, bone marrow in human being, or bursa fabricus in the birds, they are called as B cells. अच्छा, ये बेसिकली पहले चूंकि के बर्ड्स में डिराइव किया तो इसलिए उसका नाम बी सेल्स हमने रखा हुआ है। तो वो बी सेल्स बोन मैरो के रेफरेंस से नहीं रखा हुआ, बल्कि वो बर्सा के रेफरेंस से रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे थाइमस में और बोन मैरो में ये सेल्स प्रोसेस होते हैं। अच्छा, प्रोसेस का कोई मतलब बता सकते हैं? प्रोसेस का क्या मतलब? कोई बेटा मेरा बताएगा? सर मैच्योरेशन होगी सेल्स की। शाबाश, शाबाश मेरा बेटा। नंबर 1 इज कॉल्ड मैच्योरेशन। अच्छा, और कोई बात? इतने बच्चे हैं मेरे, कोई बताएं। मैच्योर होके क्या करता है बंदा? सर फिर वो अपने स्पेसिफिक साइट पे जाते हैं जहाँ पे उसका काम होता है। मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। सही है, प्लाज्मा सेल की कॉलोन बनाएंगे, वो एक्शन करेंगे सबसे पहले। अच्छा नहीं, सबसे पहले यहाँ पे आके ना थाइमस में या टी लिम्फोसाइट हो या बी लिम्फोसाइट्स हो, यहाँ पे आके वो दो तीन एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ बेटे। वो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे शाबाश एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। वो रिकॉग्नाइज करके उस तरह की पॉपुलेशन बनाएंगे। फर्ज कीजिए हमारे पास पूरे वर्ल्ड में अगर हम एंटीजेंस को डिटरमिन करें, वो एंटीजेंस हैं फॉर एग्जांपल 10 मिलियंस, ठीक हो गया? तो 10 मिलियंस लिम्फोसाइट्स की सब पॉपुलेशन आगे बनेगी। जितने भी डाइवर्सिटी है, जितनी भी एंटीजेंस की डाइवर्सिटी वर्ल्ड में है, उतने किस्म के लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बनेंगे। यानी दुनिया में जितनी एंटीजेंस है, वो चाहे बी लिम्फोसाइट्स में बने, चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स में बने। वो अलग बात है कि डाइवर्सिटी टी लिम्फोसाइट्स की ज्यादा है, बी लिम्फोसाइट्स की कम है। अच्छा, जब सारी की सारी ये क्लोन बन जाते हैं, जब इनके प्रिकर्सर बन जाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है, मैच्योरेशन हो रही है।
फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और ये बादशाह बनते हैं और इनको आगे जाके एंटीजेंस प्रेजेंट होती है अपने आप की, सेल्फ एंटीजेंस रिकग्निशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इनका। यानी आपने कहा मैच्योरेशन, ठीक हो गया, फिर हमने कहा डिफरेंशिएशन, ठीक हो गया, फिर तीसरा हमने कहा ये क्लोन बनते हैं ऑल टाइप ऑफ द एंटीजेंस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, एंड नंबर 4 ये काम करते हैं कि दे रिकग्नाइज द सेल्फ एंटीजेंस। यानी अपनी बॉडी की एंटीजेंस को में प्रोग्रामिंग होती है कि भाई कल कला ये इस तरह की एंटीजन आए तो ये आपकी अपनी एंटीजेंस है, इसके खिलाफ आपने इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो करना। अगर ऐसा ना हो फिर तो ये सारे के सारे सेल अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज या लिम्फोसाइट्स बनाना शुरू कर दें, और अगर खुदा ना खास्ता ये बनाना शुरू कर दें तो वो एक स्पेसिफिक डिजीजेस आ जाती हैं जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। देखिए ना, आप अगर अपने ही कोई स्किन ग्राफ्ट किसी दूसरी जगह पे अपने पे लगाया जाए तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, अगर किसी दूसरे इंसान का लगाया जाए वो रिजेक्ट हो जाता है। क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि आपकी अपनी स्किन की एंटीजेंस ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, वो जो थाइमस या बोन मैरो है, उन्होंने प्री प्रोसेस करके ये रिकग्नाइज कर चुकी है कि ये मेरी अपनी एंटीजेंस है और मैंने इसके खिलाफ इम्यून सिस्टम माउंट नहीं करना, मैंने इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो करना। लेकिन जब दूसरे की आती है तो वो कहते हैं हो दैट्स अ फॉरेन एंटीजन, उस फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट फॉरेन जो इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये काम थाइमस की प्री प्रोसेसिंग कर देते हैं। जब ये सारा का सारा काम कर देते हैं उसके बाद ये प्राइमरी जो सेल्स हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, थाइमस या फीटल लिवर, इसके बाद वो सेल जो होंगे, वो जो सेल प्रोसेस होके मेच्योर हो चुके होंगे, वो सेल फिर क्या करते हैं, वो उसको, चूंकि लिम्फ में ये लिम्फोसाइट्स क्यों नाम पड़ा, क्योंकि लिम्फ में रीसर्कुलेट करके ब्लड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे जाके वो फिर वापस अपना काम शुरू करते हैं कि जब भी उस तरह की कोई इन्फेक्शन हो, कोई हो, वो वहां पे जाके अपना इम्यून सिस्टम शो करेंगे। कैसे करेंगे वो फिर अभी हम देखेंगे क्या करेंगे। बेटे आप समझ लग रहे हैं? यस जी सर। अच्छा, फर्ज कीजिए Yes, बेटे sir. आपका ड्यूरिंग द बिफोर द बर्थ थाइमस निकाल दिया जाता है तो क्या होगा? T lymphocytes नहीं बनेंगे। जी, आफ्टर बर्थ ऐसा हुआ कि आपने पेशेंट का थाइमस जो है निकाल दी तो क्या होगा? हेलो सर एंटीबॉडीज नहीं बने। आज हमने अगर थाइमस निकाल दी, फर्ज कीजिए चाइल्ड पैदा हुआ, उसको बड़ी सीवियर इन्फेक्शन हो गई, आपने उसका थाइमस निकाल दिया, आपने कहा कि टी सेल्स नहीं मेच्योर हुए होंगे, यही होगा आप कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. क्योंकि वो जो थाइमस से आएंगे वो टी सेल्स होंगे, जो बोन मैरो या फीटल लिवर से आएंगे वो बी सेल्स होंगे। तो टी सेल्स अगर नहीं होंगे तो आप कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो उस एनिमल की है या उस ह्यूमन बीइंग की है वो कंप्रोमाइज हो चुकी होगी, वो इतना ऑप्टिमम नहीं कर रही होगी, यही कहना चाह रहे हैं या कोई और? Yes, sir. यही कह रहे Yes, हैं। sir. अच्छा, जब आपने वो ह्यूमन बीइंग को जब आपने उसका टेस्ट किया तो आपको पता चला उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पूरी तरह काम कर रही है, आप बताएं क्या होगा? जी सिर्फ 20 सेल्स अपना कोई पार्ट प्ले कर रहे होंगे। सर हो सकता है उसके ब्लड में अभी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हों। हाँ ठीक है बेटे, ऑलरेडी लिम्फोसाइट्स हों, और चलें आपने ऐसा किया, महीने बाद कर लिया टेस्ट, 1 साल बाद किया, 1 साल बाद भी उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, फिर Sir, bone marrow बना रहा फिर T cells.
नहीं, जो अगर बोन मैरो मेरा बेटा टी सेल बना रहा होता है तो वो तो बी सेल बनाता है, फिर हम उसको ना कह देते। जी कोई आइडिया आया? नहीं। यहाँ पे मैं एक्चुअली एक पॉइंट वाज़ा करना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं आपसे ये प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन चाह रहा था। सर टी सेल्स आई थिंक सिर्फ थाइमस के पास तो नहीं जाते, तो अगर थाइमस रिमूव कर देंगे तो कोई और सोर्स होगा जिसके पास वो जाएंगे। शाबाश, आपने कहा बेटे इफ्रा, हो सकता है कि अगर आप थाइमस रिमूव कर दें तो कोई और अल्टरनेट सोर्स हो जो उसके पास वो वही काम करना शुरू कर दे। नहीं, वो ऐसा कोई नहीं है सोर्स। खतीजा आज आप बोल नहीं रहे। खतीजा आज चुप है आज। जी आज आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अदरवाइज तो माशाल्लाह बेटे आप लोग तो बहुत पार्टिसिपेट करते हो। सर, सेल रिस्पॉन्स में एक्टिवेशन ऑफ फेगोसाइट्स भी तो होते हैं ना? वो तो एक पार्ट है ना सेल मीडिएटेड का। फेगोसाइट्स तो काम कर रहे हैं, तो लेकिन कल हम पढ़ेंगे कि फेगोसाइट्स के अलावा भी तो ये टी सेल्स हमें चाहिए। इसके सवाल का जवाब ये है बेटे, अब मैं बता दूं आपको। इसका जवाब ये है कि बिफोर द बर्थ सब के सब टी लिम्फोसाइट्स की प्रोसेसिंग हो चुकी होती है, और प्रोसेसिंग करके वो लिम्फॉइड यानी लिम्फ नोड को या सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को वो सारी की सारी पॉपुलेशन डोनेशन दे चुके होते हैं। इसलिए अगर उसके बाद अगर स्प्लीन थाइमस निकाल भी दिया जाए तो उसका फर्क कुछ नहीं पड़ता। रादर अगर आप बर्ड्स की बात करें ना, थाइमस की, उसकी जो थाइमस के इक्विवेलेंट चीज है बर्सा फैब्रिकस, फर्ज कीजिए उसका बी सेल्स के, वो इनवुलेट होना शुरू हो जाता है, वो खत्म हो जाता है ज्यों ज्यों मैच्योर होता चला जाता है। तो ये है इसका सही जवाब। इसलिए थाइमस, अगर आपने इंट्रायूट्राइन थाइमस का प्रॉब्लम आ गया तो फिर तो आप समझ लें कि टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी खत्म हो गई। अगर थाइमस सून आफ्टर बर्थ हुआ तो देन द थाइमस इज नॉट वेरी मच एसेंशियल फॉर द माउंटिंग ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्सेज, दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, राइट? ओके सर, ठीक है, यस। ओके। अच्छा, जब ये बात है तो ये जरा एक नेक्स्ट देखेंगे, और उसके बाद ऐसा करते हैं कि बाकी जो दो प्रोसेसेस हैं, हाउ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड हाउ द ह्यूमोरल इम्यूनिटी टेक्स प्लेस, वो फिर हम कल इसको करते हैं। और कल आप देखेंगे, मेरे साथ क्वेश्चन लेके आइएगा कि कोरोना वायरस क्या कर रहा होगा, एड्स क्या कर रही होगी, बैक्टीरिया क्या कर रहे होंगे, और क्यों हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, और क्यों वैक्सीन कहते हैं काम नहीं कर रही, या वैक्सीन क्यों लगानी चाहिए। ठीक है? ओके सर, ठीक है। चलिए, Yes, sir. थैंक यू बेटे। तो सी यू ऑन देन। कल है ना क्लास? जी सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? Excuse me, sir. जी बेटे विशाल। सर, आपने जो ये प्रोसेस बताया अभी कि अगर हम थाइमस ग्लैंड रिमूव कर दें, हाँ तो जी, सर हाँ, इसका आपने कहा कि पहले से ही टीनेपोसाइट्स मैच्योर हुए होंगे, तो हाँ आपका जी, मतलब है कि थाइमस हमारी बर्थ के बाद कुछ भी नहीं कर रहा होता? नहीं कर रहा बेटे, फालतू मतलब आ हमारी जाना। बर्थ के बाद थाइमस, लेकिन सर अच्छा, इसके रिमूवल से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सारे ऑर्गन्स एक दूसरे पर आप डिपेंडेंट ही होते हैं। आप ऐसा करें ना, आपको एक असाइनमेंट दूं छोटी सी, आज बैठ के कहीं ना मुझे सबमिट कराएं लेकिन पढ़ लें। जी सर। अपेंडिक्स पढ़ी है कहीं लफ्ज? जी सर। जी सर। उसका क्या काम है? वेस्टिजियल सर, हाँ वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम नहीं। हाँ, तो क्या आप मुझे बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन्स की लिस्ट दे सकते हैं जो सून आफ्टर बर्थ उनका कोई काम ना हो? यस Okay, सर। sir. जी सर, कल बताओ। ठीक है, जुबान का कोई काम है बेटे?
टंग का? जी सर। Yes, sir. इसमें Speaking जी makes सर। chewing. taste buds forget. अच्छा अच्छा, तो आप देखें कि कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिनका हमारे को काम नहीं है, और कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिनको रिमूव कर दिए जाए तो डेथ होगी, और जिनको रिमूव कर दिया जाए तो डेथ नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर पैंक्रियास भी पीसी में ही है। जी, पैंक्रियास भी इसी में ही आता है। कौन सा बेटे? सर पैंक्रियास पैंक्रियास। नहीं 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 नहीं, पैंक्रियाज निकाल देंगे तो आप देखें ना, कल आप करके आइएगा ना, ठीक है ना? सर वो गॉल। चले, ठीक है बेटे, फिर कल इंशाल्लाह ताला। ओके सर। ओके, तो जाने से पहले मैं आपको एक फिल्म ना दिखा दूं आपको 5 मिनट की, यस सर। Sure, sir. Sure, sir. ठीक है ना? चलें, अब मैं आपको फिर एक फिल्म देखता हूँ, कौन सी मैंने आपके लिए संभाल के रखी है, ये रही। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा मेरा बेटा। Are white blood cells that are found in the blood and are vital in the immune system of the body. White blood cells protect our bodies from diseases by fighting against infections. When foreign microorganisms that are likely to cause diseases enter the body, the lymphocytes respond immediately by attacking the infectious agents and toxins. Lymphocytes also prevent abnormal growth of cells and tumors. They also determine self and foreign body tissues. This can cause tissue rejection during tissue transplants, which could result in an adverse reaction. There are 3 main types of lymphocytes, namely, natural killer cells, T cells, and B cells. T cells derive their name from thymus gland, as it is the site where they are manufactured. The T cell receptor molecule is specialized, and is the main component that distinguishes T cells from other types of lymphocytes. The T cell receptor is vital in recognizing antigens and binding on them. B cells are also vital in the body's immune system. They are produced in the bone marrow, hence their name B cells. They are distinguished from other types of lymphocytes by B cell receptor, a protein which is found on their surface. The protein plays a vital role in recognizing and attaching to individual antigens. Natural killer cells lymphocytes are cytotoxic, they have the ability to destroy other cells. This property enables them to identify virally infected cells and tumors and kill them before they can spread and cause more harm in the body. It is this function that makes them a vital component of body's immune system. Lymphocytes are small in size and are about 7 to 8 micrometers long. Larger types of lymphocytes have a length ranging from 10 to 20 micrometers. Micrometers are very small units of measurements. This means these blood cells are very small in size. They have a nucleus, which forms the central structure. The nucleus consists of thin threads that turn blue or purple when stained with a dye called Wright's stain. Lymphocytes are different from other kinds of white blood cells such as eosinophils and basophils in that they do not have big, grain-like and rough-looking particles. Large types of lymphocytes have much cytoplasm and are made up of grain-shaped, reddish or purplish, rough-looking particles. While other cells turn blue in color in the presence of various chemicals during laboratory tests, lymphocytes do not. The normal lymphocyte range in adults is between 1,000 and 4,800 lymphocytes in 1 microliter of blood. In children, the normal range is between 3,000 and 9,500 lymphocytes in 1 microliter of blood. An abnormally high level of lymphocytes is associated with viral infection. In that case, the doctor may ask for other diagnostic tests. High lymphocytes, as mentioned, can hint at viral or bacterial infection, an autoimmune condition or cancer affecting the lymphatic system. Decline in the level of lymphocytes is often attributed to infection. जी बेटे,
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चलागा कि आप बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का एंड सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। जी सर पता चला। चलें बेटे, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला हम कल सारा कर लेंगे। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। Okay, sir. जी बेटे। सर ये जो जी आप बेटे। हमें स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ से सिर्फ रीड किया करें कि हमें बुक भी पढ़नी चाहिए? ना बेटे, बुक ये तो देखें, स्लाइड्स में अगर आप देखें तो आपके पास तो कुछ भी नहीं सिवाय डायग्राम्स के। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने हमें स्लाइड्स प्रोवाइड किए हैं हम सिर्फ स्लाइड्स को रीड किया करें कि बुक से भी रीड किया करें? बुक्स बेटे, मैंने आपको चैप्टर नहीं 11 चैप्टर जो है शेरवुड का सेंड किया हुआ, ये सारी चीजें उसमें है। ठीक है ना? हेलो, उससे आपके बेटे कॉन्सेप्ट सही होंगे। जी सर वो भी पढ़ रहे हैं, ब्लड वाला चलें। चैप्टर जो आपने सेंड किया होगा। हाँ, तो इस चैप्टर के बाद है ना हम एक टेस्ट लेंगे आपका। ठीक है, नेट को क्यों? राइट? Yes, sir. इसके बाद है ना ये जब चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक टेस्ट ले लेंगे, उससे आपको जरा रिवीजन भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा किस तरह के पेपर आएंगे। जी सर। जी sir. चलें बेटे, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके, Okay, sir. अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह जी, हाफिज, sir. अस्सलाम वालेकुम। Okay, sir. यस सर। ओके सर।